Assalamu alaikum, dear student. My name is Mohammad Sajid. I am on my channel Biology with Mohammad Sajid. Student, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. In this chapter, we will study respiration, breathing and exchange of gases. इन तीनों के दरमियान डिफरेंस हम स्टडी करेंगे. Students, first of all, you have to subscribe my channel, press bell icon ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस आ सकें. Student, first of all, we will discuss respiration. For explanation and detail of this topic, you have to divide this topic. First of all, you have to define respiration. Then you have to explain respiration. You have to give location of respiration, and there is an equation of respiration. You have to discuss this equation also. So student, हम जाते हैं definition की तरफ. What is definition of respiration? As shown in this equation, that glucose plus oxygen gives us carbon dioxide, water and energy. So आप define कर सकते हैं इस topic को ऐसे. The breakdown of glucose in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy is called respiration. Students, आप ये छोटी क्लासों में भी ये definition पढ़ते रहे हैं. स्टूडेंट्स, एक और डेफिनेशन आपने इसकी जो है वो 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी थी, वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये आप डेफिनेशन इसको अपने पास नोट डाउन कर लें. देन एक्सप्लेनेशन. Student, you have to explain your definition. So you have to discuss what is going in your definition. So student, you have to discuss that one molecule of glucose is break down in the presence of 6 molecule of oxygen and produce 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and 36 ATP molecule. So as this is oxidation reduction process, you must be familiar with these terminologies. Oxidation is a process in which gain of oxygen take place, loss of hydrogen take place and loss of electron take place, and reduction, loss of oxygen, gain of hydrogen and gain of electron also take place. So you have to discuss just breakdown of glucose in the presence of oxygen to produce carbon dioxide, water and energy. Then you have to tell location of respiration, where it take place. Student, plant का जो और एनिमल का जो सेल होता है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली होता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ये एनर्जी हमारे किस काम आती है? जो भी प्लांट है, एनिमल है, उसका जो भी सेल है, जो भी फंक्शन करता है वो इस एनर्जी की मौजूदगी में करता है. ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या है स्टूडेंट्स? ब्रीथिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मैं आपके सामने ब्रीथिंग कर रहा हूँ. दिस इज ब्रीथिंग. मैंने क्या किया, मैं हवा को अंदर लेके गया और बाहर छोड़ा. तो जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग. अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. इसको हम करेंगे कि ब्रीथिंग जनरली जो होता है वो होता है एनिमल्स के अंदर. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो ब्रीथिंग क्या है कि इसमें हम एयर को अंदर लेके जाते हैं और उसको जो है वो बाहर छोड़ते हैं. जब हम इसको इनहेलेशन करते हैं, अंदर लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो रिब केज मूव टुवर्ड अपवर्ड एंड डायाफ्राम, ये मस्कुलर लेयर होती है जो हमें हमारे लंग्स को, जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे अलग करती है और प्रोटेक्ट करती है. तो डायाफ्राम
muscular layer move toward down and rib cage move toward up. So movement of rib cage upward and movement of diaphragm downward. As a result, a vacuum is created, pressure decrease on lungs, and air rushes from environment to lungs through nose. In expiration, rib cage move downward, diaphragm move upward, and dome obtain a dome shape. This causes increase in pressure on lungs. As a result, air rushes move out of the body through mouth. Then location. स्टूडेंट्स लोकेशन आप इसकी क्या बताएंगे कि इंस्पायरेशन इज कैरिड आउट थ्रू नोज एंड एक्सपायरेशन इज कैरिड आउट थ्रू माउथ. देन स्टूडेंट्स हम लास्ट टॉपिक जो आ रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी होता है. और प्लांट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो तरह से होता है, और एनिमल के अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एक प्रोसेस के अंदर होता है. पहले हम एनिमल के अंदर डिफाइन करते हैं. एनिमल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड आउट इन एल्वलाई. इन एल्वलाई क्या होता है कि एल्वलाई के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, फ्रेश एयर मौजूद होती है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मौजूद है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ग्रेटर है कैपिलरीज के अंदर, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ग्रेटर है एल्वलाई के अंदर. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है फ्रॉम एल्वलाई, फ्रॉम कैपिलरीज टू एल्वलाई, and oxygen move from alveoli to capillaries. So the process in which carbon dioxide move from, आप इसको एनिमल के अंदर अलग डिफाइन करेंगे, प्लांट के अंदर इसको अलग डिफाइन करेंगे, लेकिन आप कहेंगे द प्रोसेस जनरली अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, द प्रोसेस इन विच जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब प्लांट के अंदर कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होगा. कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सेल, और रिस्पायरेशन में जो है ना वो क्या होगा, ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम एनवायरनमेंट टू सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन क्या जा रही है, बाहर जा रही है. तो ये चीज़ें आप इसकी एक्सप्लेनेशन में एनिमल के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे और प्लांट के अंदर भी डिस्कस करेंगे. जो बातें मैंने आपको कही हैं वो आपने बातें इसके अंदर डालनी है इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर. और देन आप लोकेशन बयान करेंगे. तो लोकेशन जो है वो एनिमल के अंदर आप कहेंगे कि एल्वोलाई के अंदर होती है. एल्वोलाई जो है ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, फ्रेश एयर, और इसके गिर्द जो है वो ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, वो पे यहाँ पे मौजूद है. तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ होता है. तो आप कहेंगे लोकेशन क्या है, इन एनिमल exchange of gases is carried out through in alveoli, and in plant exchange of gases is carried out through stomata. That's all. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी. दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. अस्सलाम वालेकुम.